ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں اپنے دل کو مدینہ بنا کے آیا ہوں، قبول کیجیے توبہ بڑا نرالا ہے۔ میں اپنے شہر سے تازہ سلام لایا ہوں، السلام علیکم۔ آپ کا جواب سنا کے چکنا چور ہو گیا، میرا آخری سلام میں مجبور ہو گیا کہ دا گریٹ آپ میسنجرز کا فیضان ہو، شنکا کا سمادھان ہو، زیر آسمان ہو، تاکہ بات کچھ آسان ہو اور بندہ نہ پریشان ہو۔ پھر سے میرا تحفہ سلام ہو۔ مجھ کو مکمل طور پر یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ حضرات کھانا کھا کر کے بیٹھے ہیں۔ آپ حضرات کھانا کھا کے بیٹھے ہیں، چند ہی لوگ کھانا کھائے ہیں، لگتا ہے کہ آپ حضرات صبح سے روزہ رکھے ہیں۔ روزہ کھولنے کا وقت بہت پہلے ہو چکا تھا، لیکن میں پھر سے آپ کی دیار محبت میں سلام کا حسین گلدستہ محبتوں کے تھالی میں سجا کر پیش کرتا ہوں۔ جو جہاں کہیں بھی ہوں میرے سلام کا بآواز بلند پھر سے جواب دیں۔ میں اس شعر کے ساتھ آپ کی دیار محبت میں سلام کا حسین گلدستہ پیش کرتا ہوں کہ میرا سلام محبت قبول کر لیجئے، خلوص عشق و عقیدت قبول کر لیجئے، ادب کی بزم درج شام یا جہل ادب گلے حیات کی مدحت قبول کر لیجئے۔ پھر سے میرے سلام کا دوبارہ جواب دیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ حضرات بالکل چپ رہیے گا۔ جو سڑک پر بیٹھے ہیں، لگتا ہے کہ اس وقت جو حملہ کشمیر کے وادی میں پلوامہ کے سرزمین پر ہوا تھا، وہی حملہ کرنا پڑے گا تو جب جا کر کے جرہی کے وہ سڑک پر گھومنے والے مسلمان اس محفل میں آئیں گے۔ بھائی آپ حضرات کو یہ بتائیے، سچی محبت غریب نواز سے ہے؟ ایسا دو آدمی بیٹھے ہیں، ایسا بیٹھے ہیں لگتا ہے کہ دھان کے کیاری پر، کھیت آری پر کیاری کو معائنہ کر رہے ہو۔ بھائی صاحب میں آپ سے بھی ادب بڑی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، ادھر دیکھیے۔ ہاں بھائی لنگی پہن کر کے بیٹھے ہیں، یہ تہبند پہننا میرے آقا کی سنت ہے۔ چچا آپ کو اگر غریب نواز سے محبت ہے، غریب نواز سے پیار ہے تو وہاں سے آپ کھڑے ہو جائیے۔ ہاں ایسا لگتا ہے کہ مسکرانے لگتا ہے کہ سمدھن دیکھ رہی ہے۔ چچا ایسی باتیں کھڑے ہو جائیے، وہاں سے جلدی کھڑے ہو جائیے۔ اگر غریب نواز سے محبت ہے تو کھڑے ہو جائیے۔ آپ کو اگر سراج ملت سے محبت ہے تو کھڑے ہو جائے وہاں سے۔ اور میں سبھی حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو حضرات چیئر پہ بیٹھے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں کچھ نہیں بولنا چاہتا ہوں اس لیے کہ اس وقت آچار سنہیتا لگا ہوا۔ لیکن آپ خود بتائیے، آپ نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں، بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ آپ کے اگر کوئی پاؤں میں درد ہو، گھٹنے میں تکلیف ہو تو آپ حضرات اسی پر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ حضرات وی آئی پی نہیں ہیں، اگر اعلیٰ حضرت سے محبت ہے، غریب نواز سرکار سے اگر سچی محبت کرتے ہیں تو آپ غریب نواز کے نام پر جن کو عذر نہیں ہے وہ حضرات اٹھ کر کے یہاں پر فرش نصیب ہو جائیں۔ آپ کو اگر عذر نہیں ہے، اگر غریب نواز سرکار سے محبت، بھائی صاحب اگر ٹوپی کے بیٹھے ہو سر پہ رومال نہیں، کیا تم کو محبت نہیں ہے؟ کیا تم ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی تم کو پاؤں میں درد ہو گیا؟ بھیا ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، جو ہے رومال والے بھیا جلدی سے کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں ادھر چلی آئیے، ماشاءاللہ دیکھیں یہ غوث کے دیوانے ہیں۔ آپ حضرات جو کھڑے ہیں بھائی صاحب ادھر سمجھا رہے ہیں، آپ ادھر آج چلے آئیے، ماشاءاللہ چار لوگ ادھر کھڑے ہیں، اپنے خاندان پڑھے لکھے لوگ ہیں، ماشاءاللہ۔ بھائی صاحب ادھر دیکھیے، او بھائی صاحب ادھر آئیے، ادھر جلدی چلے آئیے۔ دیکھیے دوستو، ورنہ ہمارے حافظ سمیع اللہ صاحب قبلہ بڑی محبتوں کے ساتھ جلسہ سجائے۔ اچھا یہ تو الگ بات ہے، کھانا جو پنڈال کے پاس کچھ بھائی صاحب جو وہاں پر کھڑے ہیں، ایک بات میری مانیے، آپ سبھی حضرات چیئرمین حضرات یہ نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں، نبی کے عشق لے کر کے بیٹھے ہیں۔ آپ میری بات کو دھیان نہ دیں، بلکہ نبی سے عشق اور محبت ہے تو سبھی لوگ اپنی اپنی کرسی کو لے کر کے تھوڑے تھوڑے آگے بڑھ جائیے۔ سبھی لوگ کھڑے ہو جائیے، کرسی والے تھوڑا سا کرسی لے کے آگے بڑھ جائیے، سبھی لوگ کھڑے ہوئیے۔ چچا آپ بھی کھڑے ہو جائیے، کرسی لے کر قریب آ جائیے۔ ہاں سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں، ہاں آؤ قریب آ جائیں، جلسہ کامیاب۔ ہاں ایک لائن سے بیٹھیے، لائن سے کرسی لگائیے، جلدی چلے آئیے، ماشاءاللہ۔ آپ لوگ اور آئیے، نزدیک آئیے، بھائی صاحب اور نزدیک آئیے۔ ہاں جو حضرات کھڑے ہیں بھائی صاحب آپ کیوں کھڑے ہیں وہاں پر؟ آپ یہاں آئیے ورنہ گھر جائیے۔ ہاں ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو جلسے کو انتشار کرنا چاہتے ہیں، نبی کی بس میں خلل ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ نبی کے عشق سے عشق ہے، محبت ہے تو راستہ کو خالی کیجئے، یہاں پر بیٹھ جائیے۔ آپ سبھی حضرات کو
गरीब नवाज से मोहब्बत है? अरे भैया हाथ उठा के बताइए, मोहब्बत है? सबको मोहब्बत है। अगर मोहब्बत है, ये जगह खाली है, इसको कैसे पूर्ण करना है आप समझते हैं। गरीब नवाज की मोहब्बत में जगह को पूर्ण कर दीजिए, उसको जगह को पूर्ण कीजिए भैया। अरे भैया आप कहते हैं मोहब्बत है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह भाई, जरही करो बहुत समझदार है माशाल्लाह। और आप लोग चले आइए माशाल्लाह, चले आइए, आगे चले आइए, हाँ माशाल्लाह, जल्दी चले आइए, पीछे और चचा आप भी आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। आप बहुत देर से मेरे मोहिब मोहतरम नतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना फरीद साहब की आपके गांव घर के हैं, इसका मतलब थोड़ी के अच्छी अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े जलसे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में इनकी निजामत होती है। मैं दुआ करता हूँ रब्बे कदीर हजरत मौलाना फरीद साहब किबला को खूब तरक्की अता फरमाए। बोलिए ना भैया, आप आमीन तो बोलिए। गाँव घर के लिए दुआ कर रहा हूँ, फिर भी आप आमीन नहीं बोल रहे हैं। पैसा ले जाइए मेरे पैकेट से, मगर आमीन बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए। मैं चाहता हूँ बड़ी तेजी के साथ स्टेज पर मिंबर नूर पर एक शेख मुकद्दर उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। मैं सबकी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ। फाज़िले नौजवान मुफक्किर इस्लाम हजरत कारी इफ्तिखार साहब किबला, हजरत शारे इस्लाम हजरत फाइक रजा साहब, हजरत हाफिज वसीम फरमाबादी साहब की तमाम कीमती और मायकराम, मैं सबका नाम नहीं जानता हूं। अगर सबका नाम लिया जाए तो एक आध घंटा लग सकता है। जो जहां जर्रा है वही आफ्ताब है। आप सभी हजरात स्टेज पर बैठे और मायकराम के पाकीज़ा चेहरे को देखें और पूरा मजमा पूरी बेदारी के साथ इस वक्त जो पुलवामा पर हमला हुआ है, सबसे पहले मैं उन आतंकियों को खिलाफ करता हूं, उसकी निंदा करता हूं। जरही से पैगाम जाना चाहिए कि जरही के मुसलमान, भारत के मुसलमान अपनी गर्दन को कटा सकता है, मगर भारत के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। मेरे पैगंबर ने फरमाया, जिस मुल्क में रहो अपने वतन से मोहब्बत करो। जब एक चिड़िया अपने घोंसला में रहती है, मोहब्बत करती है, हम मोहब्बत क्यों नहीं करेंगे? हम सब लोग मोहब्बत करते हैं। ये हिंदुस्तान किसी की बात की नहीं, बल्कि हाजा पाक का है। पूरा मजमा गरीब नवाज के नाम पर अपने हाथों को उठा करके बोले या रसूल अल्लाह। आप कुर्सी वाले भी एक बार पूरा मजमा गरीब नवाज के नाम पर बोले या रसूल अल्लाह। एक बार मैं शेर पढ़ता हूं तो एहसास हो जाएगा कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं। वरना बड़ी तेजी के साथ मैं कहूंगा कि एक बार एक शख्स का ऑपरेशन हो रहा था, डॉक्टर के पास गया, वक्त बहुत कम है, तो देखा कि ऑपरेशन रूम में एक फूल का हार रखा हुआ। पेशेंट बड़ा घबराया हुआ था। पेशेंट पूछा, डॉक्टर साहब मेरा पहला ऑपरेशन है, थोड़ा ठीक ठाक कीजिएगा। डॉक्टर भी कहा कि मेरा भी पहला ऑपरेशन है, मैं ठीक ठाक करूंगा। लेकिन पेशेंट घबराया हुआ, देखा कि ऑपरेशन रूम में फूल का हार रखा हुआ, वो बहुत परेशान हुआ। ताकि डॉक्टर साहब ये ऑपरेशन रूम में फूल का हार किस लिए है? तो डॉक्टर ने कहा कि सुनो, मेरा पहला ऑपरेशन है, अगर ऑपरेशन तुम्हारा सक्सेस हो गया तो समझ लो कि मैं पहन कर निकलूंगा, और कहीं अगर फेल हो गया तो तुम पहन कर निकलोगे। दोस्तों अब देखना है कि जरही में मैं कामयाब होता हूं या आप कामयाब होते हैं। एक शेर के जरिए से आपके जज्बात का इम्तिहान लेता हूं। आप सब मुकम्मल तैयार है? तैयार है? कितने लोग तैयार हैं? हाथों को उठा के बताइए। भैया तुमको तैयार नहीं का भैया? हाँ, नहीं तो घर जाओ। बड़ी तेजी के साथ शेर पढ़ता हूं, बड़ी तेजी के साथ, कि मेरे घर में खाजा का नाम का दिया चला, इसलिए कि खानकाही है, दरसगाही है, दुश्मनों के लिए तबाही है। जितने बैठे हुए हैं मेंबर पर सब आला हज़रत। बड़ी तेजी के साथ कि मेरे घर में खाजा का नाम का दिया जलता है। अब किसके किसके घर में जलता है? अगला शेर जो ही होगा, आप रात अपने हाथों को उठा करके क्या बोलेंगे? आप अल्लाह सुभान अल्लाह कहना भूल जाते हैं, मैं शेर पढ़ना भूल जाता हूँ। इसलिए आप हजरात तो जब तक मुझको सुनना चाहता है तब तक आप हजरात बोलिए। आप हजरात तैयार है? मैं फिर शेर पढ़ता हूँ। अगर तैयार है तो एक बार एक बात तो मैं बोलिए सुभान अल्लाह, कि मेरे घर में खाजा का नाम का दिया जलता है, मेरे घर में खाजा का नाम का दिया जलता है। आपके घर में नहीं जलता है क्या? जलता तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है धक्का देना पड़ रहा है। खाना नहीं खिलाया क्या आज? सब लोग मैं देख रहा हूँ बहुत देर से लंगर चल रहा है, खाना तो सब लोग खाए हैं, गरीब नवाज सबका खाए, तो पूरा मजमा बोले, या रसूल अल्लाह, कि मेरे घर में खाजा का नाम का दिया जला। आप माइक
पर्दे के नीचे आ जाऊंगा, मैं रात भर आराम से करूंगा, दूसरा खतीब ना आएगा ना शायर आएगा, इसलिए आप जल्दी जल्दी बोलिएगा। मेरे घर में ख्वाजा के नाम का दिया जलता है। आप बहुत कम जोर पड़ रहे हैं, इसलिए कि बायां हाथ है, दोनों लोग मिल करके बोले। देखिए नौजवान लोग तैयार हो जाए। आप लोग तैयार हैं? हाँ, मेरे घर में ख्वाजा के नाम का दिया जलता है। चला सब लोग मिल करके, मेरे घर में ख्वाजा का नाम का दिया जलता है, मेरा घर ख्वाजा के टुकड़ों में पड़ता है। अजी हम दीवानों को नोटबंदी से क्या मतलब, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का सिक्का चलता है। अजी हम दीवानों को नोटबंदी से क्या मतलब, हम दीवानों को अच्छा दिल का दाग खुल गया मेरा, खाता तो खुल गया मेरा। हाँ, अगर दो चार लोगों ने और इनाम दे दिया होता तो कसम से मेरा किराया निकल गया होता। बहुत दूर के नहीं, अच्छा बहुत समझदार लोग बैठे हुए हैं, अनाउंसर को इनाम कहाँ देते हैं, आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा कहीं दिक्कत न हो आप लोग। दोस्तों वक्त बहुत कम है, इसलिए कि इस वक्त आज के इस जलसे पाक में मुबारकबाद के मुस्तहिक है आली जनाब इज्जत मां मुहतरम सदर बावकार कस्मुद्दीन साहब के, जिन्होंने अपने घर पर जश्न ईद मिलादुन्नबी का इनेकाद किया है। दुआ कीजिए अली जनाब इज्जत मां कस्मुद्दीन साहब किबला को बेपनाह तरक्की अता फरमाए, उनके साहबजादों को बेपनाह मंजिलें अता फरमाए। दोस्तों बड़ी तेजी के साथ आप हज़रात मुस्कुराते रहिए, इंशाअल्लाह आपको पूरी रात में जगाऊंगा जिस तरह से एक मुअज्जिन सहरी रमजान में सहरी के लिए जगाया करता है। मैं वक्त बहुत कम है, वक्त ज़र को निखार देना है, हर एक घड़ी का हिसाब देना है। जब भी मैं कोई शेर पढ़ूं दोस्तों बस मुस्कुराकर जवाब देना है। पूरा मजमा मुस्कुराइए। हमारे वसीम खोनाबादी बिल्कुल एक नया कलाम लेकर के आपके दरमियान में आए हैं। मैं बड़ी तेजी के साथ छोड़े कलाम की कदम बोसी करते हुए कि जमजम से पहले सभा अपनी धुला करती है, तितलियां नामे मोहम्मद जो लिया करती है, मछलियां आके समंदर के किनारे मुझसे सरकारे दो आलम की नाते सुना करती है, मछलियां आके समंदर के किनारे मुझसे। और गौस से मोहब्बत करने वाले जिनके घर पे लिखा है मेरे गौस का नाम, बरकतें उनके मकानों में रहा करती है। एक शेर सुनिए, गढ़वा जिला में बड़ा बवाल उठा हुआ है। एक शेर आला हजरत के नाम पर पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। आज जो भी बकता है मेरे मसले के आला हजरत के खिलाफ, जो भी बकता है मेरे मसले के आला हजरत के खिलाफ, जो भी बकता है मेरे मसले के आला हजरत के खिलाफ, वो इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक से कटा करता है। दोस्तों वक्त बहुत कम है, इस वक्त इस इलाके के एक अजीम शख्सियत जिनकी खिताबत बर्फीली चट्टानों को चोरे की तपिश देने का हुनर जानता है, मोम की पत्नी से हीरे का जिगर चाक करने की अजीम सलाहियत रखता है, वो चाहे तो मजमा को रोने पर या हंसने पर मजबूर कर सकता है, ताजमहल का हुस्न निकाल करके गुम्बदे खदरा का जमाल भरने का पूरा इम्तियाज खतीब नौजवान हजरत कारी इफ्तिखार साहब किबला की शक्ल में है। आइए पूरी बदारी के साथ पूरा मजमा, अगर आप खाना खाए हैं तो पूरा मजमा अपने हाथों उठा करके इस्तेमाल कर ले। ना लगाइए नारे तकबीर, पीछे वाला भी लगाइए नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हजरत कारी इफ्तिखार साहब किबला, नारे तकबीर नारे रिसालत। तुझे हर रोज पढ़ना चाहता हूँ, अगर तू सुबह का अखबार हो, कई दिन से मकान खाली पड़े हैं, इन आंखों का किराया ना हो।